Okay, welcome to lecture 29, and in today's lecture my focus point would be on the equations of state EOS and fluid relations, and this is our ClO4. When I am talking about equations of state, when we were doing ideal gas equation, I mentioned one equation of state, the ideal gas equation, जिसको हम which is the simplest equation of state. अब उसके बाद जो तमाम equation of state है मैंने उस वक्त नाम दिए थे. I told you the names of some equations of state which were the RK equations of state, SRK equation of state, van der Waal equation of state, and the Peng-Robinson equation of state. I said we will come back to these later because all of these equation of states had a constant parameter in them called the compressibility factor or Z. Up till now, I taught you the compressibility factor from a graph. From a graph, we calculated the compressibility factor. Now we have to calculate the compressibility factor analytically or by calculations. And the compressibility factor is important in all the equations of state. Compressibility factor के बगैर आपको आपका analytical solution नहीं मिल सकता. तो ये तो एक बात थी. थोड़ा सा मुझे recap करना पड़ेगा equations of state के लिए, क्योंकि इसका जो first portion है that is to do with virial expansions. After virial expansions, we will move on to the equations of state. What I एक second. Yeah. Okay. Actually, I made one slide which is not here anymore. I will just have to open something again to show it to you because these are also my slides. So I know exactly what is in there. Okay. Yeah. This is what I expect you to know after on the equations of state, which I forgot to add. You should know about the equations of state. You should know about Z, the compressibility factor. You should know about the critical parameters which link Z to the reduced properties. I will teach you how to take out the critical parameters. Virial expansion should be known. Cubic equations of state should be known, which are there are 4 cubic equations of state: the van der Waal equation, the EOS, the equation of state, the van der Waal EOS, the SRK EOS, the RK EOS, and the Peng-Robinson EOS. You should know about the eccentric factor. Calculate the PV diagrams for fluids based on the above equations. I will give you questions, and based on the above equations, you should be able to solve them. Iterative problems should be able to be solved. I will make you understand how to extract information from tables and graphs. So you are able to extract data from literature. ये जो tables और graph के अंदर data लिखा हुआ होता है, we call that literature. So you have to extract the information from the literature. You should be able to read tables with PVT data. Then you need to know how to calculate the reduced properties from given properties and given conditions. You should be able to find out the generalized correlation for gases, which are the Pitzer's correlations, which will be taught at the end of this topic. And I think we can quit the generalized correlations for liquids. We don't need to know those at this stage unless we have time. So that was just a general outline. Okay, coming back to an equation of state. मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है. अगर मैंने आपसे कभी पूछा व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट, एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज अ मॉडल which is used to predict the PVT behavior of a fluid.
जब फ्लूइड की बात होती है, a fluid in thermodynamics is anything which can flow. So a liquid is a fluid, a gas is a fluid. तो कभी अगर आपसे किसी ने फ्लूइड के बारे में पूछा, दोनों चीजें फ्लूइड के अंदर आती हैं, लिक्विड और गैस। अब बात आती है कि ये इक्वेशंस ऑफ स्टेट होते क्या हैं। ये मॉडल बनाए जाते हैं जिनकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रॉपर्टी है, क्या डेंसिटी है, क्या वॉल्यूम है, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये लाजमी है कि हर इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर 3 पैरामीटर होने जरूरी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो सबसे कॉमन इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके अंदर देखें, यू हैव प्रेशर, यू हैव वॉल्यूम, यू हैव टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT या PV is equal to RT. I have told you that it is for a comparison purposes. There is no such thing as an ideal gas. हकीकत में every gas is a real gas. The equation of a real gas is PV is equal to ZRT. In the ideal gas equation, we assume that Z is equal to 1. We assume that. जिसकी वजह से वो इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT बनता है। चलें, Z किस तरह ढूंढा जाता है वो मैंने आपको चार्ट से दिखाया था। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हमने दोबारा इक्वेशंस ऑफ स्टेट क्यों डेवलप किए, इसका रीजन बाद में भी आएगा, मगर मैं आपको अभी बता दूं, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके लिमिटेड यूजेस होते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये, आइडियल गैस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लो प्रेशर, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी गैस हो जिसका प्रेशर हाई हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। टेम्परेचर लो हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो बहुत लिमिटेड फ्यू सब्सटेंसेस हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर आप बोल सकते हैं these are truly ideal gas values. वाटर वेपर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, CH4 आ जाता है, small elements. Okay, the second limitation is the more important one. उसके अंदर क्या बात होती है? उसके अंदर ये बात होती है, नाम आपको बता रहा है आइडियल गैस, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस। अगर मैंने आपको लिक्विड दे दिया, भाई बेंजीन की प्रॉपर्टी निकालो, फंस जाएंगे। Benzene is not a liquid. Benzene is a gas. Benzene is not a gas. Benzene is a liquid. What would you do? That is why the other equations of state were developed. The very first different equation of state that was developed by van der Waal in the year 1878. 1878 के बाद आपके equations develop किए गए and all of them are the basis of the van der Waal equation. यानी कोई चीज जब टाइम के साथ एक्सटेंड की जाती है, विंडोज को देख लें, जब विंडोज आई थी तो सबसे पहले विंडोज क्या थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने तजर्बा किया, एक्सप्लोरर के ऊपर आई, उसके बाद वो 7 आई, 8 आई, विस्टा आई, 10 आई। इसी तरह van der Waal इक्वेशन आपका बेसिस था। van der Waal इक्वेशन के बाद दूसरा इक्वेशन निकला आरके इक्वेशन, आरके के बाद उसका मॉडिफिकेशन निकला एसआरके इक्वेशन, एसआरके इक्वेशन के बाद पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन निकला। इसके अलावा पेंग रॉबिन्सन के बाद आज तक तो कोई इक्वेशन मॉडिफाई या डेवलप नहीं हुआ है। अब इन चारों इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर कॉमन बात यह है कि ये चारों के अंदर P, V और T आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो दिस वाज अ बेसिक definition on the EOS. The simplest and the least accurate example of an EOS is the ideal gas equation, which I discussed in lecture 3, and I even gave you a background right now. You can go back on your lecture 3 and check it out. Limitations of the ideal gas, I just told you the limitations of the ideal gas. For any real gas, the ratio of PV upon RT is not a general one. It will vary with the temperature and pressure. अब देखें, अभी मैंने आपको बात की कि
एनी रियल गैस रेशियो पीवी अपॉन आरटी, ये हमारा होता है एक्चुअली जेड. जेड कोई जनरल वन नहीं होता, बट इट विल वेरी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाउ डू आई नो दैट जेड विल वेरी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड व्हाई नॉट विथ वॉल्यूम? कीप दैट चार्ट इन योर माइंड. जब हमने जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का चार्ट स्टडी किया था लेक्चर 3 के अंदर, हमारे पास 3 पैरामीटर थे. एक पैरामीटर जेड था, दूसरा पैरामीटर टी आर था विच वॉज रिड्यूस्ड टेम्परेचर, तीसरा पैरामीटर था रिड्यूस्ड प्रेशर. रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस्ड टेम्परेचर इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर. Hence it has no ratio. Temperature units, it has no units. Temperature units and both the temperature units are going to cancel. It's a ratio. Same is the case with reduced pressure. But reduced temperature and reduced pressure have indirectly come from where? They have come from temperature and pressure. So you can say that Z is dependent upon two parameters, the temperature and pressure. Even though Z is linked with TR and PR, but that TR and PR has come from your absolute temperature and your absolute pressure. So the bottom line is that Z is directly dependent upon your temperature and your pressure, your two intensive properties. So the ratio is defined by the variable Z. Z again is known as PV upon RT. Z, which is known as the compressibility factor. It describes the deviation of a real gas from an ideal gas. The mistake that students make is they say that Z, the compressibility factor, is the ratio between an ideal gas to an real gas. That is not the case. आप स्टैंडर्ड ले रहे हो आइडियल गैस को, आप कंपेयर कर रहे हो रियल गैस को. So it is always real gas upon ideal gas. Writing ideal gas upon real gas is incorrect. The only thing you need to keep in mind, या वो चीज जरूरी है कि जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो कोई चीज का, तो आपको उसकी कंडीशन सेम रखनी है, तभी वो स्टैंडर्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नीड टू कंपेयर अ एप्पल विद अ गुड एप्पल, यानी एक एप्पल है जो 20 दिन पुराना है, एक एप्पल है जो 10 दिन पुराना है, और एक एप्पल है जो मैंने फ्रेश लिया है. इन तीनों को मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है, कौन सा बहुत खराब है. तो ये तीनों एक ही चीज है, स्टैंडर्ड है. मैं एक एप्पल और एक किन्नू को तो नहीं कंपेयर कर सकता ना. किन्नू फ्रूट अलग है, एप्पल अलग फ्रूट है. इसी तरह जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, जो मेरी रियल गैस है जिस कंडीशन के ऊपर हो, अगर उस कंडीशन के ऊपर है 10 बार और 100 केल्विन के ऊपर, तो अगर मैं उसे आइडियल गैस से कंपेयर करूंगा तो वो आइडियल गैस भी 10 बार और 100 केल्विन पे होनी चाहिए. दिस इज नॉट पॉसिबल कि जिस आइडियल गैस से आप कंपेयर कर रहे हो वो हो 15 बार और 100 केल्विन. आपका कंपैरिजन फेयर नहीं होगा. So that is the only important criteria that you need to keep in mind, that the ratio is defined as the deviation of a real gas from the ideal gas behavior, provided that the real gas is at the same temperature and pressure of the ideal gas would be. यानी जो उस आइडियल गैस का उस वक्त टेम्परेचर और प्रेशर है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपका रियल गैस होना जरूरी है. अगर आप कंपैरिजन पर्पस के लिए आइडियल गैस के लिए वाटर वेपर को अज्यूम कर रहे हो, वाटर वेपर का 100 केल्विन 5 बार है, तो आपकी रियल गैस 100 केल्विन 5 बार होनी चाहिए. अगर आपका कंपैरिजन ऑक्सीजन है एक्टिंग एज एन आइडियल गैस, उसका प्रेशर 20 बार है और उसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो आपका रियल गैस भी 20 बार 200 केल्विन होना चाहिए. So the simplest extension of the ideal gas equation is known as the Virial equation. जो simplest equation है ना ideal gas equation की, वो Virial equation की आई है, या हम कह सकते हैं the ideal gas equation is derived from the Virial equations. और इसके अंदर compressibility factor is assumed to either depend upon the pressure or the volume. अच्छा,
वायरियल इक्वेशन के अंदर हम बिलीव करते हैं कि जो आपका जो z है वो t और p पे नहीं एज्यूम करता है, वो आपका z प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वायरियल इक्वेशन क्या होते हैं, जरा इसके ऊपर जरा हम अभी बात करेंगे कि व्हाट इज अ वायरियल इक्वेशन। मैंने पहले भी बात की थी, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, सो आई विल डिस्कस दैट टॉपिक अगेन। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, if I ask you the conditions of the Virial equation, since the ideal gas is an extension of the Virial equation, it's made from the Virial equation, अगर ideal gas का low pressure moderate to high temperature होगा तो Virial expansion की क्या condition होगी? Also low pressure and moderate to high temperature. Virial expansions cannot be applicable for high pressure. चलें, before I come on to these expansions, because they were done much later, I would like to start with this. How is the Virial equation of state developed? देखें, this curve I showed you at a time before in lecture 1. All the lines above this PV diagram are isotherms. Every isotherm would have one specific temperature on for itself. यानी जो लाइनें ऊपर जा रही हैं इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। हो सकता है एक 100 हो, एक 200 हो, एक 300 हो, एक 400 हो। कल ही मैंने ये जिक्र किया था कि जो आइसोथर्म ऊपर होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है जब हम कार्नेट साइकिल को डिराइव कर रहे थे। अब isotherms for gases and vapors, they can lie above the critical point or to the right of the critical point. अब जब तक आइसोथर्म की हम बात करते हैं, आइसोथर्म मींस कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है द गैस लॉ व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन देम इज द बॉयल्स लॉ, व्हिच इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वैसे तो आइडियल कंडीशंस के ऊपर पीवी जो होता है आइसोथर्म्स के ऊपर वो नियरली कांस्टेंट होता है, और क्योंकि पीवी आपका नियरली कांस्टेंट है हम इसको एनालिटिकली एक फंक्शन ऑफ पी बना सकते हैं। यानी बेस्ड ऑन टू कंडीशन, पहली कंडीशन ये कि पीवी इज नियरली कांस्टेंट इन दिस आइसोथर्म्स, इसीलिए हम एक एनालिटिकल सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ पी बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? temperature of an isotherm is constant, so pressure is inversely proportional to volume. Based on these two conditions, हम जो on the above P, जो ऊपर PV है, it can be expressed for an isotherm by a power series in P. Experts ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये दो assumptions हैं, ये दो assumptions जब valid रहती हैं तो हम एक power series बना सकते हैं, और उस power series के जरिए हम दूसरे इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एनालिटिकल सॉल्यूशन बनाया। उनका एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या था कि ओके फाइन, लेट्स मेक अ पावर सीरीज। पीवी को उन्होंने एक वन साइड के ऊपर रख लिया। पीवी को उन्होंने वन साइड पे इसलिए रखा क्योंकि हम एनालिटिकल सीरीज पीवी को बना रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब उन्होंने डिफाइन किया कि हम कोई कांस्टेंट्स दे रहे हैं, पर क्योंकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दे रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे प्रेशर आएगा। और जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक सीरीज बना रहे हैं, और इस पावर सीरीज को अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो दिस इज द टेलर सीरीज, जिसके अंदर एवरी अदर टर्म का पावर इंक्रीज होता है बेस्ड ऑन व्हाट इज अंडर कंसिडरेशन। इधर हम राइट हैंड साइड पे कंसिडर कर रहे हैं प्रेशर को, यानी हम पीवी को कंसिडर कर रहे हैं प्रेशर के साथ। तो अगर हम पीवी को प्रेशर के साथ कंसिडर करेंगे तो हर सब्सिक्वेंट टर्म या हर अगली टर्म में प्रेशर का पावर बढ़ेगा। पहली टर्म के अंदर प्रेशर का पावर 0 होगा, इसीलिए मैंने सिर्फ ए लिखा है। दूसरी टर्म के अंदर हमारा प्रेशर का पावर 1 हो जाएगा, तो बी पी हो गया। तीसरी टर्म के अंदर प्रेशर का पावर एक और बढ़ गया, सी पी स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। अगली टर्म होती बी बी क्यूब, ई पी 5, पॉलिनोमियल टर्म्स में जाती रहती। इनफिनाइट सीरीज है। तो हमारा जो सिंपलेस्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन बना, दैट इज पीवी
इज इक्वल टू ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर। अब देखें, अब ये इक्वेशन बहुत मेसी लग रहा है। अगर आप इसको इस टर्म में रख लें तो आपको बहुत सारे कांस्टेंट्स निकालने पड़ेंगे। सो व्हाट डिड द एक्सपर्ट से? द एक्सपर्ट सेड ओके फाइन, ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं ए बी सी, इसको हम एक दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड सम अदर कांस्टेंट्स व्हिच दे फाउंड आउट, जो सारी आपको लिटरेचर के अंदर मिलेंगे। एक बुक आती है पेरिस हैंडबुक ऑफ इंजीनियरिंग फॉर केमिकल इंजीनियर्स, उसके अंदर ये तमाम डेटा रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो हम नए ये कांस्टेंट्स डिफाइन करते हैं, वेयर b इज इक्वल टू ए बी प्राइम, c इज इक्वल टू, दिस शुड बी ए सी प्राइम, d इज इक्वल टू ए डी प्राइम। इस तरह कर कर वील मेक अनदर सीरीज बेस्ड ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ a। तो उन्होंने क्या किया, ये जो pv है वो वैसे के वैसा है, a वैसे का वैसा रहेगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आ गया a b प्राइम p, c की जगह क्या आ गया a c प्राइम p स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने a को कॉमन आउट कर लिया कि नाउ इन टर्म्स ऑफ a आ गया। जब a बाहर आ गया, कॉमन आउट हो गया, तो आपका इक्वेशन सिंपली बन गया pv इज इक्वल टू a ब्रैकेट ओपन 1 प्लस b प्राइम p प्लस c प्राइम p स्क्वायर प्लस d प्राइम p क्यूब। दिस वाज द मेन इक्वेशन व्हिच वाज फॉर्म्ड। अब जो a b प्राइम c प्राइम ये कांस्टेंट्स हैं फॉर अ गिवन टेम्परेचर एट अ गिवन केमिकल स्पीसी। इसका मतलब दो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जो a b प्राइम और c प्राइम है ये कोई कांस्टेंट्स हैं, हर टेम्परेचर के ऊपर इनकी वैल्यू अलग होगी और हर स्पीसी के ऊपर इनकी वैल्यू अलग होगी। पहले स्पीसी की बात करते हैं। जब हम स्पीसी की बात करते हैं तो हम दो सिमिलर स्पीसीज ले लेते हैं, हेक्सेन और हेप्टेन। एक होती है C6, एक होती है C7। जो B प्राइम होगा वो हेक्सेन के लिए कोई अलग वैल्यू होगी, हेप्टेन के लिए अलग वैल्यू होगी, because there are two different species. But the B prime is different not only for species but also on temperature based on same species. यानी अगर मेरा हेक्सेन की B प्राइम वैल्यू कोई 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यहां तक कि 101 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी उस B प्राइम की वैल्यू के अंदर कोई फर्क होगा। बेशक 0.01 का फर्क हो, 0.02 का फर्क हो, आई डोंट केयर, बट द वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ दैट दीज कांस्टेंट्स B प्राइम, C प्राइम, D prime, they are dependent not only upon the species but they are dependent upon the temperature also. तो कभी मैंने आपसे ये पूछा कि what are these parameters dependent upon? They are dependent upon two things. Number one, the species that is under consideration. Number two, the temperature. So in principle, the right hand side of an equation is an infinite series. जो right hand side के ऊपर है ना, in terms of p, वो इन्फिनाइट सीरीज जा रहा है, जाते रह रहा है, कोई लिमिट नहीं है। प्रैक्टिस के अंदर हम फाइनाइट टर्म्स यूज करते हैं, हम तकरीबन सिर्फ 2 या 3 टर्म्स यूज करते हैं, इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है? लो प्रेशर के ऊपर वी आर इजिली एबल टू ऑब्टेन आवर आंसर इन 3 टर्म्स। एक टर्म आपकी 1 होती है, दूसरी टर्म आपकी पावर 1 वाली टर्म होती है, तीसरी टर्म आपकी पावर स्क्वायर वाली टर्म होती है, यानी 1 प्लस बी प्राइम पी प्लस सी प्राइम पी स्क्वायर। यहां पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड इक्वेशन। ट्रंकेटेड का मतलब छोटा किया हुआ, कटा हुआ। एक इनफिनाइट सीरीज को, जो कि हमारे लिए इलॉजिकल है कि वो एक कंटिन्यूएशन सीरीज है, हमने उसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ट्रंकेट कर दिया या कोई फाइनाइट नंबर के लिए कर दिया, तो उसको हम
ट्रंकेटेड इक्वेशन बोलते हैं। पीवीटी डेटा हैज शोन दैट एट लो प्रेशर, मैंने पहले भी जिक्र किया था लो प्रेशर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लो प्रेशर ट्रंकेशन आफ्टर टू टर्म्स ऑफन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी पहली दो टर्म्स के बाद आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सीरीज के अंदर। अब जो कांस्टेंट्स हैं बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, ये जो होते हैं ये स्पीसीज डिपेंडेंट होते हैं एज फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, यानी हेक्सेन के लिए भी बी प्राइम वैसे के वैसे रहेगा, हेप्टेन के लिए भी बी प्राइम वैसे के वैसे रहेगा, मतलब वैसे के वैसे से मुराद ये कि हेक्सेन के लिए बी प्राइम अलग होगा, हेप्टेन के लिए बी प्राइम अलग होगा, ऑक्टेन के लिए बी प्राइम अलग होगा। मगर ए जो होता है ना, एक्सपेरिमेंटली हमें मालूम, हमने मालूम किया हुआ है, जिसने भी एक्सपेरिमेंट की उसने मालूम कर लिया कि ए जो होता है ना, दैट इट्स द experimentally to be the same function of temperature for all chemical species। उसका मतलब तमाम chemical species है ना, in terms of temperature A की वैल्यू सेम होती है, यानी जो हेक्सेन का A हो वही हेप्टेन का A होगा, वही ऑक्टेन का A होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड का A होगा, वही बेंजीन का A होगा, you name any species, experiments have shown that the value of A is always going to be same. The other parameters B prime, C prime, D prime, they are dependent upon the species. So based on that, इन्होंने एक relation निकाल दिया कि since A is a function of temperature which is dependent upon all the species, let us make an identity A is equal to RT। चलो इन्होंने A is equal to RT कर एक साइड पे कर दिया। We will come back to A is equal to RT। Okay, I am not going to go on this slide, but in this slide all I am going to tell you is keep in mind that Z is equal to PV upon RT। ये मैं बार बार पहले भी बोल चुका था, Z is equal to PV upon RT, you should know that। I have told you on these things before। Now we come on to the viral expansion. With the definition of Z and the equation A is equal to RT, come back to this equation। देखें A क्या था, what is A? A is equal to RT। Equation on the second line देखें, PV is equal to A bracket open 1 plus B prime P plus C prime P square plus D prime P cube। मैं उधर A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, PV is equal to RT bracket open 1 plus B prime P plus C P square plus DP cube। In other words, I have done this, A is equal to RT, that is all I've done। चलें, जब A is equal to RT मैंने किया था, तो क्या ये पॉसिबल है कि if A is equal to RT I do this, ये क्या बन गया, PV upon RT क्या बन गया, Z सर, Z बन गया, यानी Z is equal to 1 plus B prime 1 plus B prime P plus C prime P square plus D prime P cube। अब ये देखें, ये मैंने डिफाइन किया है, यानी I took the help of the compressibility factor and the constant defined as A to eliminate A। तो मेरा जो वायरल इक्वेशन बन गया in terms of pressure, that is equal to Z is equal to 1 plus B prime P plus C prime P square plus D prime P cube। ये बात समझ आई? आ गई?
यस सर। अच्छा, अब इसी वायरल इक्वेशन का एक और फॉर्म बनता है जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बनता है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम पहला वाला जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होता है, दूसरा वाला इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इक्वेशन किधर एप्लीकेबल होता है और कौन सा कहां पर यूज करना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वही इक्वेशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस b, एक और कांस्टेंट आ गया, उधर b प्राइम था, यहां पर b है, यहां पर b अपॉन v, p हट गया, p का पावर 1 था यहां पर p की जगह v डिनोमिनेटर में आ गया, पावर 1। दूसरा कांस्टेंट c, यहां पर p न्यूमरेटर में था, उसकी जगह v डिनोमिनेटर में आ गया, अगेन पावर 2, पावर 2। p was in numerator, v comes in the denominator, power 3, power 3। these both are infinite series, power series हैं। सिर्फ फर्क ये है, one is in terms of pressure, one is in terms of volume। जो सेकंड टर्म होती है ना, सेकंड टर्म का मतलब ये जो p के साथ होती है, p का पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं सेकंड वायरियल कोएफिशिएंट। और जो p स्क्वायर की टर्म के साथ होती है दैट इज नोन एज द थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट। जो d के साथ होगी दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द फोर्थ वायरियल कोएफिशिएंट। सिमिलरली ओवर हियर द सेकंड वायरियल कोएफिशिएंट इज b, द थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट इज c, एंड सो फोर्थ। अब फॉर एनी गिवन इक्वेशन इन्होंने क्या किया, फॉर एनी गिवन इक्वेशन दे put these relations in, these relations are predefined, यानी b prime can also be written as b upon rt, c prime can be written as c minus b square rt square, and so forth। इन्होंने ये रिलेशन इसलिए बनाई ताकि ये b प्राइम अगर इन टर्म्स ऑफ b आ जाए तो आंसर आसान हो जाएगा। अगर मैं b प्राइम को लूं और b को लूं, दीज आर टू डिफरेंट आंसर्स। अगर मैं उसको एक को सब्जेक्ट बना दूं तो मैं आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ मेकिंग दीज एक्सप्रेशंस, so that it could be solved analytically in terms of t by substitution। This was all done before. Now I'm going to come to my main part। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है the two virial expansions, one in terms of pressure, one in terms of volume। z is equal to 1 plus b prime p plus c prime p square plus d prime p cube, or z is equal to 1 plus b upon v plus c upon v square plus d upon v cube। The coefficients b and b prime are known as second virial coefficients, c and c prime are the third virial coefficients। In most application, the series is truncated after the first term। The predictions from the two truncated terms are slightly different। यानी पहली जो टर्म है उसके बाद आपकी सीरीज ट्रंकेट हो जाती है, आपको आंसर मिल जाता है, मगर थोड़ा सा जो प्रिडिक्शन है ना वो इस टर्म का और इस टर्म का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या फर्क आता है, क्या फर्क आता है आंसर में। मगर मैं आपको यह बता दूं कि फर्क आने के लिए ये वाला जो प्रेडिक्शन है ना, z is equal to 1 plus b upon v plus c upon v square plus d upon v cube, this is more accurate। This is the most accurate equation compared to this। More accurate, less accurate, and least accurate would be ideal gas। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा विच ऑफ द वायरियल इक्वेशंस इज मोर एक्यूरेट, तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम इसके अंदर आइट्रेशंस करते हैं। अभी मैं बात करूंगा आइट्रेशन क्या होती है। हम आइट्रेशन करते हैं, बट वैसे मैं आपको बता दूं आइट्रेशन मींस रिपीटिंग वन वैल्यू। एक वैल्यू एक दफा की,
दूसरी दफा की, तीसरी दफा की, जब तक आपका आंसर आपको मिल जाए। तो जब आप कोई चीज को रिपीट करते हो तो आप क्या करते हो भाई? आप लोग ने एफएससी किया था ना, एफएससी के अंदर प्रैक्टिकल्स होते थे केमिस्ट्री के अंदर। जी, यस सर। केमिस्ट्री के अंदर सर प्रैक्टिकल्स होते थे, उसके अंदर एवरेज कैलकुलेशन। उसके अंदर हाँ एवरेज पे मैं आ रहा था, उसके अंदर एक चीज होती थी जिसको हम टाइट्रेशन बोलते थे, एसिड और यस एल्कली बेस सर। टाइट्रेशन करते थे। क्या आपके टीचर या जिसने भी आपको प्रैक्टिकल सिखाया था उसने कहा था एक टाइट्रेशन लो और ये आपका आंसर हो गया? कम से कम आप उसके 3 या 4 वैल्यू लेते थे, 3 या यस 4 वैल्यू लेने के बाद उसका एवरेज करते थे। एवरेज क्यों करते थे? कि आपका आंसर एक्यूरेट हो जाए। तो जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वायरियल एक्सपेंशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम आइट्रेशन करते हैं। आइट्रेशन का भी यही मतलब है, वी आर रिपीटिंग द सेम वैल्यू। बिकॉज वी आर रिपीटिंग द सेम वैल्यू, we are decreasing the chances of our error, which is why this equation compared to the equation in terms of pressure is more accurate. If I ask you that which of the two equations in terms of giving the answers to P and V is more accurate for the value of Z, यहां तक बात समझ आई? आ गई? हेलो, जी सर। जब मैं पूछूं आपसे आ गई तो प्लीज वन पर्सन सर से असल यस। में माइक खोलने में सर टाइम लगता है ना सर। जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है उस वक्त तो टाइम नहीं लगता। सर मोबाइल बंद हो जाते हैं ना। अच्छा, चलें अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द वायरियल इक्वेशंस की। अब इसके बारे में मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं। द टू फॉर्म्स ऑफ वायरियल एक्सपेंशंस आर इनफिनाइट सीरीज, मींस दे कैन गो एनीवेयर, कोई भी टर्म्स तक जा सकते हैं। इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन द यूज इज प्रैक्टिकल। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम बोलते हैं हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, हमें इनफिनाइट नहीं चाहिए। और वेयर कन्वर्जेंस इज रैपिड, आपको चाहिए कन्वर्जेंस। अब यहां बात आती है कि हमारे पास दो टर्म्स आए, कन्वर्जेंस और आइट्रेशन। इनमें फर्क क्या है? कन्वर्जेंस मींस योर आंसर वेयर योर आंसर हैज कन्वर्टेड। आइट्रेशन मींस नंबर ऑफ टाइम्स यू रिपीट एन आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आइट्रेशन 1 किया, मेरा आंसर आ रहा है 1.1165। आइट्रेशन 2 1.0798, iteration 3 1.0785, iteration 4 1.0784, iteration 5 1.0784, iteration 4, iteration 5, my answer was similar. This is convergence. I have got my answer. जो मेरा आंसर मिल जाता है और it converges to a specific value. In convergence it can increase or it can decrease, but where it becomes stationary or similar values, then we call it convergence. Iteration क्या है? Number of times you repeat the values. So that is the difference between convergence and iteration. Don't get confused that convergence is the same as iteration. Rapid convergence means that 2 or 3 terms are sufficient. जब हम वायरियल इक्वेशन की बात करते हैं, रैपिड कन्वर्जेंस का मतलब यह है कि 2 या 3 टर्मों के अंदर हमें अपना आंसर मिल जाता है और हम चाहते ही ये हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपना आंसर जल्द से जल्द मिल जाए, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। टू द वैल्यू ऑफ द सीरीज, गैसेस और वेपर्स एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर, यानी जो गैसेस जो लो या मॉडरेट प्रेशर, एक्चुअली आई शुड नॉट राइट लो या मॉडरेट प्रेशर, ideal condition is low pressure. Gases which are at low pressures, or in other words moderate or high temperature,
उनके अंदर कन्वर्जेंस बहुत आसानी से फॉलो फाइंड आउट हो जाएगी, वेरी इजीली कन्वर्जेंस 2 या 3 टर्म में फाइंड आउट हो जाएंगी. दैट इज व्हाई द वेरियल इक्वेशंस आर वेरी गुड फॉर कन्वर्जेंस वैल्यूज. अच्छा, okay, fine, I forgot to mention one thing. What I forgot to mention was, इस पॉइंट से रिलेटेड है. why is it low pressure and moderate temperature? Giving a good answer. Because ये जो वायरल इक्वेशन है ना, दे आर फॉर्म फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन. या मैंने आपको शुरू में बोला था आइडियल गैस इक्वेशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ द वायरल गैस इक्वेशन. यही बात मैंने आपको बताई थी. तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो ही आपकी वायरल गैस इक्वेशन की कंडीशन होगी. अब हाउ इज एन आइडियल गैस इक्वेशन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द वायरल इक्वेशन या एक्सटेंशन? लुक एट इक्वेशन नंबर 2. हम जो ये टर्म्स की बात करते हैं, b अपॉन v, c अपॉन v स्क्वायर, d अपॉन v क्यूब, these are nothing but molecular interactions. ये molecular interaction between the gas molecules हैं. हमारा assumption क्या है आइडियल गैस इक्वेशन में? What is one of the fundamental assumptions of an ideal gas equation? That what uh, what are the intermolecular forces between ideal gases? क्या assume करते हैं? Negligible करते हैं या zero करते हैं? यानी there are no interactive forces. अगर there are no interactive forces तो ये टर्म जीरो बन जाएंगी, बिकॉज ये सारी v's आपकी जीरो बन जाएंगी, क्योंकि ये d जीरो हो जाएगा, c जीरो हो जाएगा, b अपॉन जीरो हो जाएगा, होल टर्म जीरो हो जाएगी. सो योर इक्वेशन वुड बिकम z इज इक्वल टू 1. z क्या होता है? z इज इक्वल टू pv अपॉन rt. rt को अगर आप इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? pv इज इक्वल टू rt. आइडियल गैस इक्वेशन बन गया आपके क्या नाम है, वायरल एक्सपेंशन से. इसीलिए ये बोला जाता है जो आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशंस हैं वही वायरल गैस इक्वेशन की कंडीशन है. लो प्रेशर, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर. बात समझ आई किस तरह डिराइव हुआ? आगे चलूं? हुआ? रिपीट करना. क्वेश्चन है पूछे? सर क्वेश्चन नहीं, बस आप रिपीट कर दें जो आपने भी कहा है. अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि ये जो आइडियल गैस है ये इस वायरल गैस इक्वेशन एक्सपेंशन की एक एक्सटेंशन है. किस तरह एक्सटेंशन है? इस तरह एक्सटेंशन है कि आइडियल गैस के लिए हमारा अजम्पशन क्या होता है? देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये जो b अपॉन v है, c अपॉन v स्क्वायर है, d अपॉन v क्यूब है, दीज आर कंसिडरिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज ये z के फॉर्म में बना है. रियल गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. जब हम अज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस है तो b अपॉन v, c अपॉन v स्क्वायर, d अपॉन v क्यूब, they will become 0. आपका इक्वेशन बन जाएगा z is equal to 1. h का फॉर्मूला pv अपॉन rt, तो pv अपॉन rt is equal to 1. rt को अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं मल्टीप्लाई बाय 1, pv is equal to rt. You have made your ideal gas equation from the viral expansion. So because the ideal gas equation is applicable to low pressure and moderate to high temperature, इसीलिए viral expansion is also good for low pressure to moderate to high temperature. और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि good convergence is found in gases and vapors at low pressures. बात क्लियर हुई? अब many other EOS have been proposed for gases. Gases के लिए हमने बहुत सारे EOS propose किए हुए हैं, but viral equations low pressure के ऊपर क्यों इतने significance रहते हैं? Viral equation इसलिए significant रखते हैं
अगर आपके पास लो प्रेशर हो, क्योंकि आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है वायरियल कोएफिशिएंट का। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि पेरिस हैंडबुक के अंदर बी प्राइम की वैल्यू भी है, सी प्राइम की भी वैल्यू है, डी प्राइम की भी वैल्यू है, हर कंपोनेंट की वैल्यू है। तो आपके पास डेटा मौजूद है। क्योंकि आपके पास डेटा मौजूद है, वायरियल एक्सपेंशन आर द बेस्ट एस्टिमेट फॉर गैसेस ओनली एट लो प्रेशर। अगर आपकी गैसेस हाई प्रेशर के ऊपर हो गई, देयर इज नो क्वेश्चन, आप वायरियल एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते, देन यू आर फोर्स्ड टू गो ऑन अनदर इक्वेशन ऑफ स्टेट। मगर अगर आपके पास प्रेशर ही लो है, देन योर बेस्ट बेट इज द वायरियल एक्सपेंशन, क्योंकि यू हैव डेटा। व्हेन यू हैव डेटा ऑफ समथिंग, इट इज बेस्ट टू यूज इट। But when the condition changes and the pressure is high, you have no option but to go to another equation. अच्छा जी, अब हम डेरिवेशन करते हैं कि ये ट्रंकेटेड सीरीज वायरल एक्सपेंशन की आई कहां से। ये एक कंपोनेंट है मीथेन का, ये मीथेन के लिए इन्होंने बनाया था और ये लिटरेचर के अंदर है। ये इन्होंने दिखाया है कि डिविएशन किस तरह हो रही है जेड की वैल्यू से। अब थोड़ा सा मेरे साथ फोकस कर लें, मैं इसको जरा रीड आउट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। द फिगर शोज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी जेड आपको दिखा रहा है पीवी अपॉन आरटी। 200 वॉट गिन ले। क्या हुआ? द फिगर शोज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ फॉर मीथेन। ये मीथेन को दिखा रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी डिफरेंट आइसोथर्म्स के ऊपर। The values are calculated from PVT data existing in literature। जो मैं बात कर रहा था ना, लिटरेचर के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है, वहां से इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट की और एक ग्राफ बनाया है। Z is plotted against pressure for various constant temperatures। constant temperatures का मतलब isotherms, constant temperatures का मतलब various isotherms के ऊपर बनाए। graphical representation of isotherms show what the viral expansion in terms of P show analytically। आपको जो ग्राफिकल, माइक्स प्लीज ऑफ कर दें, एनालिटिकली जो शो होगा आपको आंसर्स मिलेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ के अंदर इस तरह मिलेंगे। द आइसोथर्म्स आर नियरली स्ट्रेट एट लो प्रेशर। ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर आप लो प्रेशर के ऊपर देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 और 50 के बीच में देखो, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 100 के ऊपर एक डॉट बना हुआ है जहां से सारे आइसोथर्म्स बने हुए हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखें, तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन जा रही है लो प्रेशर के ऊपर। आइसोथर्म का जो स्टार्टिंग है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, बाद में जाकर आइसोथर्म कर्व कर रहा है। जब ये 200 की तरफ आ रहा है तो देखें कितना डिविएशन हो रहा है। आखिरी दो आइसोथर्म्स देखें कितना डिविएशन हो रहा है हाई प्रेशर के ऊपर। मगर शुरू के अंदर क्या है, शुरू के अंदर मोर और लेस दैट लाइन इज स्ट्रेट। तो ये बोलना चाह रहा है कि एट इनिशियली जहां पर प्रेशर कम है वहां पर ये लाइन स्ट्रेट होती है। यही बात मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले कही थी कि जो वायरल एक्सपेंशन है ना, ये बेस्ट सूटेड है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर जब आपके पास हो तो आप एनालिटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसीलिए ग्राफ के अंदर लो प्रेशर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन तकरीबन बनी हुई है। ये वही चीज उसको ग्राफिकली आपको इसने बात बताई है। अच्छा, अब आपको अगर ये बात समझ आ गई कि लो प्रेशर के ऊपर स्ट्रेट लाइन है, अब आगे देखें। it's the first form of viral expansion। दो फॉर्म है ना वायरल एक्सपेंशन के, पहला है इन टर्म्स ऑफ P, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ V। In the first form of viral expansion in terms of pressure, it is differentiated as a result below obtained for the truncated form। हमारा गोल है ट्रंकेटेड फॉर्म निकालने के लिए वायरल एक्सपेंशन का। तो हम क्या करेंगे, हम Z को डिफरेंशिएट करेंगे। हम Z को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो पहली जो टर्म है Z की, जो Z की टर्म है dz हमारे पास क्या बन जाएगा, Z हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस b प्राइम p प्लस c प्राइम p स्क्वायर प्लस d प्राइम p क्यूब। अगर हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो हमारे पास क्या बन गया, dz इज इक्वल टू b। वन का कोई वो नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, b प्राइम है
आई एम सॉरी, दिस शुड बी बी प्राइम। मैंने गलती से बी लिख दिया है, इट शुड बी बी प्राइम। I am differentiating with respect to B, P, so ये B prime हो गया। ये क्या बन जाएगा, 2 is going to come over here as a constant, C prime P। ऊपर वाले इक्वेशन का क्या बन जाएगा, 3D prime P square। पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया, अब मैं अज्यूम करता हूं, अब बैक टू दिस डायग्राम, अब मैं अज्यूम करता हूं कि लो प्रेशर के ऊपर मेरी जो लाइंस थी वो स्ट्रेट बन रही थी, वो मेरे पास स्ट्रेट बन रही थी, जो यहां पर जो लाइन थी। तो अगर मैं इन लाइन के ऊपर एक टेंजेंट बना दूं, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो उसके ऊपर मेरा डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं P को मैं 0 अज्यूम करूं। वहां पर मैं P को 0 इसलिए अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि ये एक एनालिटिकल सॉल्यूशन है। एक सेकेंड, ये बोलने से आसान, आपको दिखाना है। आई वुड लाइक टू शो यू एन इमेज, माइट बी यू गेट द आंसर कि मैंने P को 0 क्यों अज्यूम किया है। अनलेस न्यू एडिशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है। टेम्परेचर ऑफ टर्म्स, देखें इस बुक के अंदर इन्होंने आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। मैं यूज करता हूँ 7th एडिशन। 7th एडिशन के अंदर मेरे पास हार्ड फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी एक स्नैप लेकर आपको शेयर भी कर दूंगा। तो स्नैप के अंदर ये लिखा है कि हम प्रेशर को 0 इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि लो प्रेशर्स के ऊपर आप इनकी जो लाइन है ना, वो स्टार्टिंग लाइन के ऊपर ये ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है। ये देखें, ये जो लाइन फॉलो हो रही है इनिशियली लो प्रेशर पे 0 होती है। तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर इज इक्वल टू 0 होता है, ट्रंकेट करने के लिए। तो अगर हमने टेंजेंट बनाकर प्रेशर इज इक्वल टू 0 कर लिया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हमारा जो ये इक्वेशन जो चल रहा था यहाँ पर, हमारा जो ये इक्वेशन चल रहा था dz in terms of differential, dz is equal to b prime plus 2c prime p plus 3d prime p square। अगर मैं इसको p को 0 रख लूंगा तो मेरा आंसर क्या बच जाएगा dz की फॉर्म में। p को अगर मैंने 0 लिखा तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, z equals 1। बताएं। z equals to 1 होगा सर अगर p 0 रखेंगे आप। देखें, लेट मी वर्क इट आउट ओवर हियर। अगर मैं P को 0 रखूंगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन के लो प्रेशर के ऊपर, आप इसको कंसिडर करते हैं एनालिटिकली बिकॉज द टेंजेंट इज मेड एट 0। इफ आई कीप P इज इक्वल टू 0, व्हाट वुड माय इक्वेशन बिकम, वुड माय, मेरा P 0 हो गया, वुड माय इक्वेशन जस्ट बिकम दिस। सब कुछ जब 0 हो गया, इक्वेशन मेरा बन जाएगा 1 ये। सर 1। हेलो, आपकी आवाज कट रही थी अभी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। हेलो, यस सर, आ रही जी है सर आपकी आवाज। आवाज किसी को आवाज आ रही है? बिरयानी लानी है। जी सर आवाज आ रही यस है। सर, आ रही। जी, कब का लगा हुआ? कैन यू हियर मी और नॉट?
आधे पौने घंटे में पूछता है पौने क्या रहेगा तो साढ़े 10 को सर आपको सुन सकते हैं हम लोग। पूछ के कर लेना हमने। क्या हो गया? आवाज आ रही है ना मेरी अब? यस सर। यस सर यस। तो बोले तो सही प्लीज। सर कब से बोल ही रहे सर, आपको आवाज नहीं आ रही लग रहा है हमारी। आपकी आवाज आ रही है हमें। चलें, ये समझ आ गया कि डी जेड इज इक्वल टू बी प्राइम कैसे हुआ? यस सर समझ आ गया। चलें, समझ आ गया। अब इस डी जेड इज इक्वल टू बी प्राइम को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? इंटीग्रेट करूं विद टर्म्स ऑफ पी, जो नीचे लिखा है वही आंसर बनेगा। नीचे इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, जो नीचे इक्वेशन लिखी है ना वही इक्वेशन बन जाएगी। यानी पहले मैं इसको p को 0 रखकर dz की टर्म में लाऊंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा। यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो दिस इक्वेशन z इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्राइम p, क्योंकि ये इक्वेशन आपको दी हुई जाती है जी। सर इंटीग्रेट से नीचे वाली इक्वेशन कैसे आएगी? क्योंकि अगर हम देखें सर तो p तो इसलिए आएगी क्योंकि जो ना p पे 0 होगा तो p 0 प्लस 1 p आ जाएगी, लेकिन 1 कैसे आएगी सर? एक स्टेप इन्होंने मिस किया हुआ है, फाइनल इसका आंसर ये आएगा। अच्छा ये ओके सर। मैंने सिर्फ dz निकाला था, इन्होंने एक स्टेप मिस किया हुआ है, बट दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें कि ये याद है जो मैंने आपको करवाया था, पहला इक्वेशन सिर्फ देखें, b प्राइम इज इक्वल टू b अपॉन आर टी। सिर्फ इस इक्वेशन में मेरा इंटरेस्ट है और कोई इक्वेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा ये वाला इक्वेशन मेरा क्या बन जाता है? मेरा जो ये जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्राइम p, दिस वुड बिकम 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी। 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी, दैट इज द इक्वेशन आई एम इंटरेस्टेड इन। यानी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वेशन देखूं तो मेरा इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी। दिस इज नोन एज द ट्रंकेटेड इक्वेशन। दो टर्म्स के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझसे सवाल पूछें जो पूछना है। हेलो हाँ जी, बोलें बोलें। सर, आप अभी जो हमारे हमें जो ग्राफ समझा रहे थे सही कि जो जेड के जो हमारे पास जो ग्राफ थे उसमें आपने कहा कि हम जो है ना जैसे ही जो है ना जहाँ पर ज्यादा डेविएशन हो रही है वो जो है ना लो प्रेशर पे हो रही है, लेकिन हाँ अगर सर हम देखें तो नीचे आने से जो है ना वो तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है, तो वो तो जो सबसे ऊपर वाले जो हमारे पास ग्राफ जो कर्व बना है जो स्ट्रेट लाइन बना है उसका भी प्रेशर वही है, जो है ना जो सबसे नीचे वाले जो कर्व हमारे पास जो डेविएट होकर बना है उसका जी, भी प्रेशर सेम ही है। वो तो असल में जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जब प्रेशर लो होगा तो डेविएशन ज्यादा हो रही है? जब प्रेशर प्रेशर, को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे। मैंने ये नहीं कहा जब प्रेशर लो होगा डिविएशन ज्यादा हो रही है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब प्रेशर लो हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के अंदर सबकी जो लाइन है ना वो स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने कहा है कि स्टार्टिंग अच्छा ओके सर, ओके ओके। आखिरी लाइन देखें, द आइसोथर्म्स आर नियरली स्ट्रेट लाइंस एट लो प्रेशर, जिसकी वजह से आप पी को 0 कर उसको निग्लेक्ट करते हैं। ये ओके मैथमेटिकली सर, ओके इन्होंने सॉल्व किया है, मैंने कहीं ये नहीं कहा क्लियर सर। डिविएशन की बात मैंने की नहीं है। ओके सर, मैं मिस अंडरस्टैंड कर गया। हाँ, चलें भाई, आपको आपके जो काम की चीज है ना, आपके काम की चीज सिर्फ ये है, ये आखिरी इक्वेशन z is equal to 1 plus bp upon rt. In other words, this can also be written as pv upon rt is equal to 1 plus bp upon rt, because z is equal to pv upon rt. So this is the equation for the second virial coefficient. अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी और मैंने आपसे ये पूछा कि why is this the equation for second virial coefficient, या how do you know this is the equation for second virial coefficient, क्या जवाब होगा? बी है ना सर हमारे पास, और B है, सेकंड वायरल कोएफिशिएंट। देखें B है,
अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो जिसके अंदर बी भी हो और सी भी हो, तो आप बोलेंगे दैट इज द इक्वेशन फॉर द थर्ड वायरल कोएफिशिएंट। बात समझ आई? अगर बी और सी दोनों हो, योर इक्वेशन इज थर्ड वायरल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट कोएफिशिएंट को देखेंगे। अगर सिर्फ बी हो, सेकंड वायरल कोएफिशिएंट। The equation on the previous slide shows a direct proportion between z and p. ये जो इक्वेशन है ना, z is equal to 1 plus bp upon rt, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, जिस तरह आपका प्रेशर बढ़ेगा आपका z भी बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो आपका z भी कम होगा। It is often applied to vapors at subcritical temperature up to their saturation pressure. Subcritical temperature क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट हमारे पास होता है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। The critical point is the final point between the vaporization curve and the final point on the vaporization curve. It is the last point and the initial point is the triple point. Apart from that, the critical point is the point beyond which you cannot distinguish between a fluid. The fluid will become dense fluid. You cannot tell whether the fluid is a vapor or whether a fluid is a gas. वो टू फेज रीजन के अंदर नहीं रहेगा। That is the critical point. उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस हो गया तो आपको डेंस फ्लूइड मिल गया। तो अब आपके पास तीन रिजीम होती हैं। एक रिजीम आपकी होती है क्रिटिकल टेम्परेचर रिजीम, एक रिजीम होती है जो उसके ऊपर होती है जिसको आप सुपर क्रिटिकल बोलते हैं, और एक रिजीम उसके नीचे होती है जिसको आप सब क्रिटिकल बोलते हैं। तो ये बात हो रही है सब क्रिटिकल रिजीम की। It is often applied to vapors at subcritical temperatures up to their saturation pressure. यानी अगर आपका क्या बोलते हैं सुपर क्रिटिकल रिजीम आ गया ना, तो दिस एप्लीकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो फर्ज करें अगर मैंने आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला बीवी निकालें कोई चीज के लिए, सही है, ये मैंने आपको बोला, ये मैं पहले कर चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने आपको बोला बीवी निकालें और मैंने आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर 500 केल्विन है, अज्यूम करें कि मैंने आपको दिया है 500 केल्विन और मैंने आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि 550 केल्विन है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करती है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं देखती और वो टेम्परेचर नहीं देखती, वो डायरेक्टली सॉल्व करेगी कि 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर का सवाल का मतलब है कि इसके ऊपर एक पूरा 1 पेज की वर्किंग होगी, जबकि इस सवाल की सिर्फ 3 लाइनें थी। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज योर टेम्परेचर इज इन द सुपर क्रिटिकल regime and according to law this law of viral expansion is only applicable to the subcritical regime. So please keep your eyes open for my question like this. यही फर्क होता है जो A और B प्लस के बीच में फर्क आ जाता है। बात समझ आई? तो जब आपको डेटा मिलेगा तो सबसे पहले डेटा में देखिएगा कि मेरा क्रिटिकल रिजीम क्या है, मेरा टेम्परेचर क्या है, ये चीजें देखिएगा। ये समझ आ गई या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? आ गई समझ? यस सर। सर ये सुपर क्रिटिकल रीजन का वापस बता दे। मैंने आपको ये बताया कि एक हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर में चला जाएगा, जो टेम्परेचर कम में होगा वो सब क्रिटिकल टेम्परेचर में होगा। ये जो सेकेंड वायरियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सब क्रिटिकल। अगर आप सुपर क्रिटिकल में चाहते हो तो आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो, आपको कोई और इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करना पड़ेगा, या तो आप पेंग रॉबिन्सन यूज करोगे, या आप पिट्जर्स रिलेशन यूज करोगे, या आप कोई और चीज यूज करोगे, मगर आप ये चीज नहीं यूज कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्योंकि आप सुपर क्रिटिकल में चले गए हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि आपका सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर 500 है और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो कंडीशन कर रहे हो वो 550 पे कर रहे हो, तो 550 तो 500 से बड़ा है ना, सुपर क्रिटिकल में चला गया है। तो अगर आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया बाय दिस मेथड, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये कह रहा हूं।
समझ आई बात? ओके सर, समझ में आ गया। यस सर। चलिए, ये प्रैक्टिस के साथ होगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। So it is often applied to vapors at subcritical regime. Truncated form of the second viral expansion in terms of volume. ये जो मैंने लिखा था, ये truncated form लिखा था in terms of pressure, 1 plus Bp upon RT. Truncated form in terms of volume क्या होगा? 1 plus B upon V. That is all. 1 plus B upon V is truncated form for the second viral coefficient. For convenience purposes, truncated forms of the viral expansion in terms of pressure is preferred. अब मेरा वो सवाल आया जो मैं आपको बताना चाह रहा था पहले। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों इक्वेशंस हो, प्रेशर, दोनों इक्वेशन हो, प्रेशर भी हो, वॉल्यूम भी हो। अगर आपको आपका आंसर लाना है, अगर आपका क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन में सेकंड वायरियल कोएफिशिएंट है, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर द प्रेशर इक्वेशन। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट है, यू वुड ऑलवेज प्रेफर द वॉल्यूम इक्वेशन। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिर्फ पूछा सेकंड वायरियल कोएफिशिएंट के टर्म्स में दो, तो आप ये इक्वेशन नहीं लोगे। आप ये नहीं लोगे z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी, आप ये लोगे z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी अपॉन आर टी, ये वाला इक्वेशन लोगे, बिकॉज आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेना है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर सी भी आ जाता, तब आप ये वाला इक्वेशन लेते, उसके अंदर आप लिखते z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर। इस तरह कर करते। बात समझ आई? यस सर। ये मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा भी है, तो अब मुझे गलती नहीं चाहिए। ये देखें, लिखा हुआ है फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस truncated form of the viral expansion in terms of pressure is preferred. Accuracy wise it is similar to expansion in terms of volume. Accuracy के लिए दोनों सेम होंगे, मगर second viral coefficient जो B होता है ना, that is substance dependent, और ये सिर्फ एक फंक्शन टेम्परेचर का होता है। तो अगर ये फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर का होता है, तो आप प्रेशर वाला इक्वेशन यूज करोगे। उसकी पानी डाल दिया पौधों में। आप प्रेशर वाला इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हो? इसको देखो, प्रेशर वाले इक्वेशन के अंदर RT आ रहा है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ रहा है। वॉल्यूम वाले इक्वेशन के अंदर B अपॉन V आ रहा है, T का जिक्र नहीं है। तो आपका जब आप B की बात करते हो, it is always better to use the pressure expansion because the substance is dependent on the function of temperature and the temperature is only available in this equation, 1 plus B upon P RT. That is the reason. आप लोग ने ये उस वक्त पढ़ा नहीं था, पर मैंने रिसेंटली ये वाइवा लिया था 119 से। मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा था, उनको आंसर नहीं मालूम था। They should have known that, but you should know under which circumstances are you supposed to take what equation. I can give you my question like this. I can say accuracy wise, both the volume expansion and the pressure expansion give you the same value for the second virial expansion. Nevertheless, we prefer in terms of pressure. Why? तो आप ये बोलेंगे we prefer it in terms of pressure because data wise the substance is dependent upon temperature. Only in terms of pressure you get it in the terms of temperature. In terms of volume there is no function of T. In terms of volume Z is equal to 1 plus B upon V. Temperature कहीं भी नहीं है. In terms of pressure Z is equal to 1 plus B upon P R upon T. There is a function of temperature. Hence this is a more favorable solution to get the answer. देखें, एक बात याद रख लें, correct answer and accurate answers, they are two different things. ये भी आपने, I think आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आपने अपना सबसे पहला पोर्शन किया होगा। एक तो वर्नियर कैलिपर होता था, दूसरी चीज को क्या बोलते थे? I forgot what the second thing was called. तकरीबन कुछ 10-12 साल तो हो गए मुझे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज।
तो उसके अंदर आपको बताया लाजमी होगा कि करेक्ट और एक्यूरेट के अंदर फर्क होता है। आपका आंसर इनकरेक्ट भी हो सकता है मगर एक्यूरेट वो हो सकता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी। याद आया? याद आई ये बात? यस सर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्यूरेट और करेक्ट आंसर के बीच में फर्क है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है एक्यूरेसी इट इज सिमिलर टू वॉल्यूम, यानी एक्यूरेटली वाइज इट कैन बी सिमिलर टू वॉल्यूम बट दैट डज सर नॉट वो मीन। प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है सर। अच्छा सॉरी, प्रिसाइज और एक्यूरेट, बट प्रिसाइज भी तो करेक्ट ही होगा ना। नो सर, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज जो है ना वो हम जो है ना जो रैंडम वैल्यूज देंगे उसको देखेंगे कि आप इसमें कितने करीब है, और फिर करेक्ट वैल्यू से देखेंगे कि कितना जो है ना उससे डेविएट कर सकते हैं। मेरा मतलब वही था, प्रिसाइज और एक्यूरेट, बट इसके अंदर भी ये है आपका आंसर एक्यूरेट हो सकता है बट इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी करेक्ट। जी सर, यही है सर। बात वही, कॉन्सेप्ट वही है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ गैसेस एंड एस्टिमेशन ऑफ द सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रेशर बढ़ जाए, कोई और चीज हो जाए, तो हम पिट्जर कोरिलेशन फॉर गैसेस कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग इन दिस कोर्स। तो पिट्जर को हम आखिर में देखेंगे। फिलहाल आप पिट्जर को भूल जाएं, आप सिर्फ इस ट्रंकेटेड फॉर्म को देखें। तो ये था आपका सेकंड वायरल कोएफिशिएंट के ऊपर। अब बात आती है थर्ड वायरल कोएफिशिएंट के ऊपर। फॉर प्रेशर्स अबव द रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी बट स्टिल बिलो द क्रिटिकल प्रेशर। फर्ज करें कि आपका एक जो आपका सेकंड वायरल कोएफिशिएंट होता है ना, वो कोई स्पेसिफिक प्रेशर जोन के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल 100 बार तक जाता है, आप चले गए 105 बार के ऊपर, आप चले गए 105 बार के ऊपर, मगर ये 105 बार आपके क्रिटिकल प्रेशर से स्टिल कम है। आपका क्रिटिकल प्रेशर है 110 बार और आप चले गए 105 बार, और आपका पहला इक्वेशन की लिमिट है 100 बार। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा थर्ड वायरल कोएफिशिएंट के ऊपर, क्योंकि आप अभी भी क्रिटिकल रिजीम से नीचे हैं। अगर आप क्रिटिकल रिजीम से ऊपर चले गए तब तो आपको कोई और इक्वेशन लेना है, मगर अगर आप क्रिटिकल रिजीम के ऊपर ही हैं, अंडर हैं, तो आप थर्ड वायरल कोएफिशिएंट ले सकते हैं। So for pressures above the range of applicability but still below the critical pressure, the virial equation has to be truncated up to 3 terms to provide excellent result. The third virial coefficient is used. Important line. In such a case, the expansion in terms of volume is far better to give accurate and better results than the equation in terms of pressure. यही बात मैं आपको कह रहा था कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 2 वायरल कोएफिशिएंट हैं, यानी सेकंड वायरल कोएफिशिएंट है, आप प्रेशर वाला इक्वेशन लोगे। अगर आपके पास 3 वायरल कोएफिशिएंट है, यानी थर्ड वायरल कोएफिशिएंट है, तो आप इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लोगे। Hence, when the virial equation is truncated up to 3 terms, the suitable form is Z is equal to 1 plus B upon V plus C upon V square. अगर मैं 2 वायरल कोएफिशिएंट लेता तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करता? मैं ये इक्वेशन यूज करता, 1 plus B upon P upon RT। क्या यूज कर रहा हूं? 1 plus B upon V plus C upon V square is equal to PV upon RT। बात समझ आई? जी सर। चलें, the previous equation can be solved directly for pressure। अगर प्रेशर होता तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, मगर जब ये वॉल्यूम में आ रहा है, ये क्यूबिक इन नेचर है। देखें, यहां पर v स्क्वायर है, यहां पर v है, z के अंदर भी एक v होता है। डोंट फॉरगेट z हैज अ v ऑफ इट्स ओन। z इज इक्वल टू pv अपॉन rt। तो अगर एक v वहां पर है और नीचे v स्क्वायर है, तो थियोरेटिकली ये क्या बन जाएगा? ये क्यूबिक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो v भी इनकॉर्पोरेट होगा तो v क्यूब बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं
इसको यूं लिखता, यहाँ भी तो v है ना जो नीचे वाले v से मल्टीप्लाई होगा, समझ आई? यस। जी सर, सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है सर। अच्छा, तो ये एक क्यूबिक सॉल्यूशन बन जाएगा। v कैन बी सर फाउंड एक बाय, क्वेश्चन है सर। जी सर आप कहते हैं कि जो सेकंड वायरल कोफिशिएंट होता है उसके लिए हम प्रेशर यूज करेंगे और प्रेशर वाली इक्वेशन यूज हाँ करेंगे, ये और जो थर्ड थर्ड होगी हमारे पास उसके लिए वॉल्यूम वाली इक्वेशन यूज करें। जी, सर तो थर्ड वाली के लिए हम जो है ना प्रेशर की इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी तो थर्ड के लिए एप्लीकेबल होती है। आप कर सकते हैं, बट बात अगेन वही आई कि आपका एक्यूरेसी वाइज बेटर, इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर मैंने लिखा नहीं है, टू गिव एक्यूरेट एंड बेटर रिजल्ट्स। ओके सर, ओके। और क्यों बेटर रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी मैं वजह आपको बताता हूं। v कैन बी फाउंड बाय आइट्रेशन, आपको यहां पर आइट्रेशन करना लाजमी होगा। अगर आप रिपीटेड वैल्यूज करते हो, आइट्रेशन करते हो, तो आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्योंकि आप आइट्रेशन कर रहे हो, आपका आंसर लाजमी ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो इसलिए आप थर्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट के अंदर वॉल्यूम को यूज करोगे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला है तो आप 5 आइट्रेशन करेंगे, 5 आइट्रेशन के बाद आप 5वीं का आंसर लिख लीजिएगा। और अगर मैंने आपको ये लिखा डू इट अप टिल 3 आइट्रेशन, तो आपको फिर मालूम होना चाहिए कि मुझे 3 तक करना है या 4 तक करना है, जितना मैं बोलूं। अगर कुछ नहीं बोला हो तो सेफ्टी वाइज 5 के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, लाइक द वैल्यूज ऑफ बी, values of C also depend upon the gas under consideration, upon temperature of the gas। जिस तरह B dependent है temperature पे, T भी dependent है temperature पे। Much less is known about the third virial coefficient। थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट के पास हमारे पास इतना डेटा नहीं है जितना सेकंड का है, in comparison to second virial coefficient, despite the data being found available for number of gases। गैसेस के अंदर हमारे पास अक्सर डेटा है थर्ड वायरल कोएफिशिएंट के ऊपर, मगर हमारे पास नॉलेज इतनी नहीं है। सो द वायरल कोएफिशिएंट बियॉन्ड द थर्ड, जो फोर्थ वायरल कोएफिशिएंट होगा, फिफ्थ होगा, उसके बारे में तो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो हम आम तौर पे सिर्फ थर्ड वायरल कोएफिशिएंट तक करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते इसको। अब शुरू करने से पहले मैं आपको ये टेबल इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बार बार आर का जिक्र आएगा। पहले भी आर का जिक्र आया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर भी आर का जिक्र आया था। आर की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। मैं आपको ये बोलता हूं कि आप आर की वैल्यू 8.314 लें। 8.314 कब लें? जब आपका प्रेशर पास्कल के अंदर है, जब आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर है, जब आपका तीसरा पैरामीटर क्या था, प्रेशर पास्कल, वॉल्यूम, टेम्परेचर केल्विन, तब आप आर की वैल्यू 8.314 बोलेंगे। ये जब मैंने पहले न्यूमेरिकल्स लिए थे जेड के अंदर, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि डेटा सारा जेड का बार में दिया हुआ है और उन्होंने सॉल्व कर दिया था, मगर यूनिट उन्होंने बार के रखे हुए थे और आर की वैल्यू 8.314 लिखी थी, पास्कल में कन्वर्ट नहीं किया था। तो आप आर की वैल्यू नहीं ले सकते अगर आपके यूनिट बार के अंदर हैं। तो सिंपलेस्ट थिंग इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एसआई यूनिट्स। अगर आपके यूनिट्स बार के अंदर हैं तो फिर आपको आपका वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, बार नहीं, एटीएम की बात कर रहा हूं। अगर आपके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको 82.05 लेना पड़ेगा। बार के लिए भी ये है। बार के लिए आपको जो वॉल्यूम है उसको लीटर में करना पड़ेगा या डेसीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। प्रेशर जो है उसको मिली बार में करना पड़ेगा और इसको आपको केल्विन लेना पड़ेगा। तो ये तमाम आर की वैल्यूज हैं based on your units of consideration. The easiest thing to do is everything in SI units for R 8.314.
तो ये टेबल शेयर करने का मकसद ही ये था कि R की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दैट यू हैव। अब देखें, मैं आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा इस एक न्यूमेरिकल के अंदर। क्वेश्चन क्या है? रिपोर्टेड वैल्यूज फॉर द वायरियल कोएफिशिएंट्स ऑफ आइसोप्रोपेनॉल वेपर at 200 centigrade are this: B is equal to minus 388 centimeter cube per mole। ये क्या चीज है? मोलर प्रॉपर्टीज दी हैं, स्पेसिफिक मोलर प्रॉपर्टीज दी हैं, स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम है। C is equal to minus 26,000 centimeter cube मोल माइनस 2। सबसे पहले तो इनके यूनिट्स देखें। B था सेकेंड वायरियल कोएफिशिएंट, C है थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट। सेकेंड वायरियल कोएफिशिएंट यहां देखें B अपॉन V, तो यूनिट होंगे इसके मीटर क्यूब। C जो था वो किसके ऊपर था? मीटर क्यूब के स्क्वायर के ऊपर, तो इसके यूनिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली सेंटीमीटर क्यूब मोल माइनस 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया है। ये बात देखी आपने, ऑब्जर्व की? यस सर। अब आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड Z, यानी मुझे V ढूंढना है, Z ढूंढना है आइसोप्रोपेनॉल के लिए जो 200 सेंटीग्रेड पे है एंड 10 बार। ये इसकी कंडीशन है। सारे आंसर ऐसा यूनिट्स में देने हैं, और ये इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है पहला पार्ट आप करो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है कि आप करो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वायरियल कोएफिशिएंट, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में ही लिखा है Z इज इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन RT, और बोला है फर्स्ट वायरियल कोएफिशिएंट। और इसी पार्ट के अंदर कहा है प्रूफ दैट V इज इक्वल टू RTP प्लस B, ये उसका दूसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में देखें Z इज इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन V प्लस C अपॉन V स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट में आंसर निकालना है। यही मतलब हुआ ना? थर्ड वायरियल, टू वाली सेकंड वायरियल इक्वेशन नहीं होगी? हाँ, तो सही है सर। जो 2 है वो सेकंड वायरियल कोएफिशिएंट है, जो थर्ड है वो थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट की टर्म में। तो तीसरे के अंदर आपको थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट से निकालना है। थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? बाय आइटरेशन। और चौथे के अंदर ये बोल रहा है कमेंट ऑन योर आंसर्स ऑफ Z दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज आती है यहाँ पर जो वॉल्यूम निकलेगी वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में निकलेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में निकलेगी अनलेस मैं अज्यूम कर लूं कि आई एम टेकिंग 1 मोल बेसिस सो दैट ऑल माय आंसर्स आर इन मीटर क्यूब। अगर मैं अपना आंसर स्पेसिफिक वॉल्यूम में लिखूं और मेरा फाइनल, और मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे डेंसिटी का भी आंसर दें, तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी अगर आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम का आंसर आया 3000 मीटर क्यूब, 3000 मीटर क्यूब पर मोल, नहीं कुछ गलत बोल रहा हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहा है ना, हाँ सही है, 3000 मीटर क्यूब पर मोल, तो डेंसिटी या पर केजी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 3000। यानी अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इस तरह बोलता कैलकुलेट द V, Z एंड डेंसिटी, तो आपका जो V था ना इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको आपको इन्वर्स करना पड़ता। वॉल्यूम को इन्वर्स नहीं करते, स्पेसिफिक वॉल्यूम को इन्वर्स करते, बिकॉज डेंसिटी इज नॉट द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इज इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी तो मैंने ये डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं दिया है, मगर बाद में मैं डेंसिटी भी दे सकता हूं, इसीलिए मैंने बोला कि ये नहीं बोलिएगा कि हम Z के थ्रू डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं।
चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब सिंपलेस्ट आंसर है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक चीज देखिएगा, ये जो बी और सी हैं ये एसआई यूनिट्स में नहीं है, इसका एसआई यूनिट्स मीटर क्यूब में होता है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें बाय यूनिट कन्वर्जन, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। सबसे पहले मैंने अपना डेटा लिख लिया, टेम्परेचर 473.15 केल्विन एसआई यूनिट्स में। प्रेशर को मैंने पास्कल में चेंज कर लिया बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू गो इन एसआई यूनिट्स। पहले मैंने बी को कन्वर्ट कर लिया, मेरा जो -388 सेंटीमीटर क्यूब था वही मैंने चीज की 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, वो क्यूब है तो दोनों साइड क्यूब कर कर मुझे एक बी की नई वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। सी को मैंने वही चीज किया, मगर सी के अंदर नीचे देखें मैंने पावर 6 किया। पावर 6 इसलिए किया क्योंकि सेंटीमीटर का पावर 6 है, तो यूनिट कंसिस्टेंसी के लिए मैंने पहले बी और सी को अपने एसआई यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इधर ही मैंने बेसिस अज्यूम कर लिया 1 मोल। मैंने बेसिस इसलिए 1 मोल अज्यूम कर लिया ताकि मेरा जो वॉल्यूम का आंसर आए ना वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के आंसर में नहीं आए, वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के आंसर में आए। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मैं Z को अज्यूम करता हूं 1। मैं क्या करूंगा, PV इज इक्वल टू RT, सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन। जब मैंने PV इज इक्वल टू RT लगाया, P मेरा 10 टू द पावर 5 है, V मुझे मालूम करना है, Z मैं 1 अज्यूम करूंगा, तो R की वैल्यू मुझे मालूम है 8.314, T की वैल्यू 473.15 है, मुझे V मिल गया 3.933 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। मैंने मीटर क्यूब कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही अज्यूम किया था कि मेरा 1 मोल बेसिस के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का चक्कर ही नहीं रहा। ये पार्ट समझ आया कि मुझे वॉल्यूम कैसे मिली, मुझे Z कैसे मिला। टीचर तो मुझे तीनों पार्ट के अंदर यही करना था। तो मैंने पहले पार्ट के लिए मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड Z एंड V फॉर ईच ऑफ द 3 थिंग्स। तो पहले पार्ट के अंदर तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मुझे Z और मेरा V मिल गया, वेरी गुड। पार्ट टू इन्होंने कहा है फर्स्ट वायरियल इक्वेशन के फॉर्म में दो, और मुझे प्रूफ करना है दैट V इज इक्वल टू RTP प्लस B। इन्होंने RTP प्लस B इसलिए किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप इन टर्म्स ऑफ B और P को भी ले सकते थे। अब देखें, पहले मैं डेरिवेशन वाला पार्ट करता हूं। Z इज इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन RT, दैट इज नथिंग बट द सेकेंड वायरियल एक्सपेंशन। मैंने क्या किया, LCM ले लिया, Z इज इक्वल टू RT प्लस BP अपॉन RT। Z की जगह मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ PV अपॉन RT लिख दिया। PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT प्लस BP। दोनों नीचे वाले RT कट गए। मैं अगर V को सब्जेक्ट बना लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, और V को सब्जेक्ट बनाऊं तो RT अपॉन P बन जाएगा, BP अपॉन P बन जाएगा। V इज इक्वल टू RT अपॉन P प्लस B। देखें बन गया V इज इक्वल टू RT अपॉन P प्लस B। जी यस सर। अब मुझे ये बताएं, अब मैं Z कैसे फाइंड आउट करूंगा और V कैसे फाइंड आउट करूंगा? रिपीट करेंगे सर एक मुझसे कल साबित कमरे में क्या बातें कर रहा था सुबह? तो जी? बाबा मुझे क्या बार रिपीट करेंगे पार्ट 2 एक बार। ड्राइव कैसे किया, क्या कैसे किया? ड्राइव कैसे किया, हाँ, मैं देख P रही थी इक्वल क्या टू बातें RT कर अपॉन रहे थे। कैसे किया, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे चाहिए Z और V पार्ट B के लिए। अब पार्ट B के Z और V के लिए अब मैं कैसे ढूंढ सकता हूं Z और V? इसके लिए मुझे थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरह कि मैं पहले V ढूंढ लूं और V के हेल्प से Z ढूंढ लूं, क्योंकि Z ढूंढना पहले मुश्किल है, V ढूंढना आसान है, क्योंकि V का डायरेक्ट रिलेशन आ गया है V इज इक्वल टू RTP प्लस B। तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू RT, R मेरा ये है 8.314,
P मेरा क्या है 473.15, P मेरा क्या है 10 to the power 5 पास्कल। इसके यूनिट्स देखें 3.88 into 10 to the power -4 minus 3.88 into 10 to the power -4 मोल पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर मोल। कैसे मालूम मीटर क्यूब पर मोल था? यहां पर मैंने B को निकाला था, -3.88 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब पर मोल। तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मैंने 1 मोल बेसिस ली है, क्योंकि मैं वॉल्यूम ढूंढ रहा हूं। तो वॉल्यूम मुझे क्या मिल जाएगा 3.5458 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब जब मुझे वॉल्यूम मिल गया तो मैं उसी वॉल्यूम को रियल गैस इक्वेशन में डालकर उसका Z नहीं निकाल सकता? PV इज इक्वल टू ZRT। मेरे पास प्रेशर मुझे मालूम है, वॉल्यूम मैंने अभी अभी ढूंढा, यही वैल्यू मैंने वॉल्यूम की डाली। Z मुझे ढूंढना है, R की वैल्यू मुझे मालूम है, T की वैल्यू मुझे मालूम है। मुझे Z मिल गया 0.90137। सही है? यस सर। तीसरा पार्ट, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी, लाजमी आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम आइट्रेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस BVP प्लस C अपॉन V स्क्वायर। मैंने V को सब्जेक्ट बना दिया ताकि मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल लूं। वॉल्यूम के टर्म्स में मुझे एक डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो वॉल्यूम के टर्म्स से मुझे RT अपॉन P ब्रैकेट 1 प्लस B अपॉन V प्लस C अपॉन V स्क्वायर मिल जाएगा। अब आइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि आइट्रेशन के अंदर आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है ना, वो होती है I+1। जब आप आइट्रेशन पढ़ते हो, आपने मैथ्स के अंदर किया होगा, तो आपकी जो इनिशियल टर्म है वो I+1 है, और I+1 आपको ith टर्म देगी। तो उस V की जगह मैंने लिख दिया VI+1 इज इक्वल टू RT अपॉन P और इज इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन VI प्लस C अपॉन VI स्क्वायर। अब अगर मुझे सबसे पहली टर्म चाहिए I1 की, यानी V1 चाहिए, तो V1 के लिए मुझे I क्या रखना पड़ेगा? 0। तो मैंने सबसे पहले VI को 0 रख लिया। जब मैंने VI को 0 रख लिया तो मेरे पास सिंपली बच गया V1 के लिए RT अपॉन P, RT अपॉन V। तो जब मैंने RT अपॉन P निकाला तो मुझे एक Z1, और उस वक्त वो मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो जो RT अपॉन P है वो Z1 के लिए है, क्योंकि यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी Z जो है वो आइडियल कंडीशन है। तो इस कंडीशन के ऊपर मुझे जो मेरी V0 मिलेगी या वेरी फर्स्ट V मिलेगी, दैट इज नथिंग बट 3.933 into 10 to the power -3। यानी जो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन वाली वॉल्यूम थी ना, क्योंकि आइडियल गैस किसके ऊपर थी, Z इज इक्वल टू 1, तो यहां पर मेरी V0 वैल्यू क्या होगी, V0 वैल्यू होगी सेम एज द आइडियल गैस वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पर्पसेस के लिए मुझे Z इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। तो ये समझ आ गई V0 वैल्यू कैसे मिली मुझे? यस सर। अच्छा, अब मैं आइट्रेशन करना शुरू करूंगा और अब मेरे आंसर्स को देखिएगा, मेरे आंसर्स पे क्या असर आएगा। सबसे पहले मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला। V1 का फॉर्मूला हो जाएगा RT अपॉन P 1 प्लस B अपॉन V1 प्लस C अपॉन V1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे V2 मिलेगा। तो अगर मुझे V1 ढूंढना है तो V1 के लिए सबसे पहले मैं V0 की वैल्यू डालूंगा, V0, और यहां पर मैं 1 प्लस ये जो -3.88 into 10 to the power -4 की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। जो नीचे जो वैल्यू है वो V0 की वैल्यू है 3.933 into 10 to the power -3, प्लस
ये C की वैल्यू है। C की वैल्यू से पहले माइनस नहीं भूलिएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर प्लस माइनस का फर्क बहुत फर्क बना सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है, तो अपने प्लस और माइनस को देखिएगा। और नीचे मेरे पास V नॉट की स्क्वायर की वैल्यू है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एक V1 की वैल्यू मिलेगी। ये जो V1 की वैल्यू है ये है 3.53839 इंटू 10 टू द पावर -3। ये V1 की वैल्यू है। इस V1 के कॉरिस्पॉन्डिंग एक Z1 की वैल्यू होगी। वो मुझे कैसे मिलेगी? Z1 इज इक्वल टू PV1 अपॉन RT। तो मुझे एक Z1 की वैल्यू मिल गई। ऑब्जर्व करें, Z1 की वैल्यू है 0.899491। अब मैं क्या करूंगा? मैं सेकेंड आइट्रेशन करूंगा। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होता है? सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो सेकेंड आइट्रेशन इज V इज इक्वल टू RT अपॉन P। ये याद रखें, RT अपॉन P के अंदर आपको ओरिजिनल V की वैल्यू लेनी है। ओरिजिनल V की वैल्यू का मतलब वेयर Z इज इक्वल टू 1। RT अपॉन P हमने यहां निकाला था, RT अपॉन P Z इज इक्वल टू 1। तो जो पहला वाला RT अपॉन P है, यहां पर आपको Z इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी V नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहां पर V1 की वैल्यू नहीं डाल दीजिएगा, आपका आंसर गलत होगा। V नॉट की आपकी वैल्यू क्या थी? 3.933 इंटू 10 टू द पावर -3। बाकी सब वही है। 1 V की वैल्यू देयर एंड देन है, V1 की वैल्यू यहां पर आप 3.5387 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखेंगे। ये आपको यहां से मिली थी V1 की वैल्यू से। तो आपने एक V2 की वैल्यू निकाल ली। जब आपने V2 की वैल्यू निकाली, आप कॉरेस्पॉन्डिंग Z2 की वैल्यू निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे? थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो V नॉट की वैल्यू बाहर रहेगी जो पहले थी। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो B के नीचे चेंज हो रही है और C के नीचे चेंज हो रही है, बिकॉज वो जो आइट्रेशन वैल्यू है दैट इज I, और जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज I+1। तो V3 के लिए आपको V2 की वैल्यू यूज करनी पड़ी है। तो जब आपने ये सॉल्व किया तो आपको V3 की वैल्यू मिल गई। V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग PV इज इक्वल टू ZRT से आपको ये मिल गया, Z3 की वैल्यू मिल गई। अब आप आइट्रेशन 4 लगाएं। आइट्रेशन 4 के अंदर वही चीज करें, V नॉट की जगह ओरिजिनल वैल्यू Z इज इक्वल टू 1, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। V3 यहां आ जाएगी, V3 यहां आ जाएगी, आपको Z4 की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको कहा था जहां पर आपको कुछ नहीं लिखा हो आप 5 आइट्रेशन करें, तो आप एक 5 आइट्रेशन करें। मगर यहां पर मैं थक गया था तो मैंने 4 आइट्रेशन कर ली, 4 के ऊपर मुझे आंसर मिल गया। Z4 के ऊपर देखें, Z4 के ऊपर मुझे आंसर मिल रहा है 0.88644। Z3 पे मुझे मिल रहा है 0.8663। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी जो आंसर है वो 0.88644 है। अगला करते तो यकीनन आपको 0.88644 मिल जाता। तो यहां पर मैंने लिख लिया माय Z4 वैल्यू इज दिस, माय कॉरेस्पॉन्डिंग V4 वैल्यू इज दिस। अच्छा, एक चीज गौर में रखिएगा, एक चीज ये रखिएगा कि जब आप Z और V की वैल्यू निकालें ना, 2 डेसिमल प्लेसेस पे नहीं रुकिएगा, कम से कम 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस पे जाइएगा। देखें, मैंने भी V को 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस पे रखा है, मैंने Z को भी 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस पे रखा है, आपके आंसर में फर्क आ जाएगा। तो जब आपको आपका फाइनल Z4 मिल गया, अब आप लास्ट पार्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? मैंने ये लिखा, सिंस Z4 is equal to Z3 0.88664, it is assumed that the convergence has taken place. So this is my value for V4. Last part क्या था? Comment on your answers. From the third viral coefficient we know Z is equal to 0.88664. आइडियल गैस इक्वेशन में Z इज इक्वल टू 1, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 1 माइनस 0.8664 मल्टीप्लाई बाय 100, 11.3% आ रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना,
वो 11.3% हायर वैल्यू दे रहा था Z की। इसी तरह मैंने Z3 को कंपेयर किया थर्ड वायरल कोएफिशिएंट को Z2 के साथ, यानी सेकंड वायरल कोएफिशिएंट के साथ। थर्ड वायरल कोएफिशिएंट में मेरे पास 0.90137 आ रहा था, सॉरी 0.88644 आ रहा था। सेकंड के अंदर मुझे 0.9037 आ रहा था, तो इसके अंदर मुझे एक फैक्टर मिला 1.49 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड वायरल कोएफिशिएंट का जो आंसर था दैट वाज 1.49 टाइम्स हायर देन द थर्ड वायरल कोएफिशिएंट। इसीलिए द थर्ड वायरल कोएफिशिएंट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। थर्ड वायरल इक्वेशन के अंदर मैंने 4 या 5 आइट्रेशन की, so my answer is more accurate as compared to with the ideal gas, as compared to the second viral coefficient. Ideal gas equation is the least accurate. First viral coefficient is slightly more accurate. The best answer is the second viral coefficient because of the number of iterations you do to achieve convergence. बात समझ आई? I would like to stop over here, and after stopping over here, just give me a second please.